Sonia, requesting you to come and have your seat. Respected Director Sir, respected Principal Sir, and all the alumni and my students and my colleagues, those who are here, a very warm welcome in this evening to you all. I, Pinky Sharma, standing here on the stage on behalf of Sophia School, as a Vice Principal of the Sophia School, I am welcoming you all again to the reunion of our Sophians. Today, we will memorize our memories which you have spent in this school. From last so many years you are studying here. I don't know even more of the students, those who are earlier passed from here, but I feel that I am connected to them by my heart, because they are also the family of Sophia and I am also the family of Sophia. On behalf of Sophia family, I, Nitin Sharma, the ECA and cultural head of the school, once again welcomes you in the family. Here, you all are here to memorize your memory and make some new memories. So, starting the function, I would like to pray from Ma Saraswati that Saraswati Maya Drishta Veena Pustak Dharinim Hansava Hansava Yukta Vidya Dan Karo Mama. I would like to call our Director Sir, Principal Sir and Vice Principal Ma'am to lit the lamp and start the program. Tomorrow is a vision, but a day well lived makes every yesterday a dream of happiness and every tomorrow a vision of hope. Carrying the same vision, we Sophians successfully completed 13 years of glorious and tremendous of its exist. 13 years, a decade, more than a decade. It keeps a meaning in all of you students' heart. I think those who are here present for the reunion, all the alumni can memorize their memory when they were first entered the school, when they first entered the school of Sophia, how their director sir was there, how the classes were there, how they enjoyed the classrooms,
the mischief or the naughtiness, what they have done in the classroom, all I think you are rememorizing them and enjoying them and again recalling them with your friends you are sitting beside. Ma'am, you know, we have one person in our school who always says कि एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, बेसब्र मेरी उड़ाने हैं, मेरे पंख नीले रंगवा दो. With these words he created a lot CS, scientists and many more other professionals. So I would like to welcome her with a huge round of applause. Our director, none other than our director sir, Mr. Rupesh Navhal, for some words for the alumni. Please welcome at the stage, sir. He is the founder of the Sofian family and till now he is giving us a motivation. He is an idol for all of us, for all the students and for all the staff. His hard-working spirit and the spirit of fighting with everything. He has the solution of every problem and gives us a way and ideas to create and enthusiasm to us when we are less in energy. Please welcome our director sir, Rupesh Nehwal, with big round of applause. आवाज आ रही है? अब खाली एल्यूमिनीज की आवाज आनी चाहिए. जिनको ढंग से भागना आता है, उस पता है हुसैन बेल्ट को जानते हैं आप लोग? डू यू नो हुसैन बेल्ट? 2-3 दिन पहले मैंने फेसबुक में देखा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हुसैन बोल्ट और अदर रनर. तो खाली जस्ट लाइक इन एथलेटिक्स हम बात करते हैं कि तेज भागता है, स्टेमिना है. बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच आई गॉट टू नो 2-3 days earlier. उसके स्टार्ट और उसका पोस्चर, उसका तरीका, उसका एंगल, वो एक ऐसी चीज है जो उसको हमेशा शुरुआत तेज करने की मदद करता है और इसीलिए पहले भागता है और जीतता है. आप अपनी लाइफ के, अपने स्कूल के समर्पण को दिखाने के लिए और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ने की रेस में आप सब हुसैन बेल्ट है जो आज यहाँ पर मौजूद है. इनके लिए जोरदार तालियां. नाउ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा क्या? माई सेल्फ रुपेश शर्मा कुछ सालों से नवहाल लगाने लग गया. इतिहास कहानी आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि भैया
पहचानने में थोड़ी दिक्कत होने लगी, कौन से सर, कौन से सर, कौन से रुपेश शर्मा, कौन से रुपेश। और अब धीरे धीरे आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी ऐसी बन गई है, किससे मिलना है, रुपेश नवाल से मिलना है या रुपेश शर्मा से मिलना है, ठीक है। और ठीक है, समय के हिसाब से जिस प्रकार से नए गैजेट्स आते हैं, मॉडिफिकेशन आता है, अपडेशन आता है, उसी प्रकार से हम भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। पहले ऑकवर्ड लगता था, क्या ऑकवर्ड लगता था, कौन से सर, बड़े वाले या छोटे वाले और अभी तो मेरे स्टाफ ने अभी मेरा 7 दिसंबर को बर्थडे मनाया था, उसमें नए नाम, वो केक में नाम ही नया डाल दिया, बड़कू, ठीक है। अरे मैं कह रहा हूं अब अपडेट कीजिए, मॉडिफिकेशन कीजिए, ये वापस मुझे देसी लैंग्वेज में जा रहे हैं। एनीवे, आप लोग सब जो इस शानदार अवसर के अंदर यहां मौजूद हैं आज, खास तौर पर ये जो प्रोग्राम है, इसका मोटिव, उद्देश्य यही है कि 13 साल पहले से लेकर आज तक जितने भी बच्चे क्लास 12 पास आउट हुए हैं, उनको एक ही मंच के नीचे, एक जगह, एक स्थान पर, एक निर्धारित समय पर इकट्ठा करना। चीजें दिमाग में, सोच विचार कई सालों से थे इस प्रकार का कुछ हो, लेकिन कुछ चैलेंजेस हमेशा रहते थे, एंड वी कुडंट हेल्प टू मेक इट इन रियल, बट आई एम थैंकफुल to my all staff members and some of the dedicated staff also having new ideas to be generated and to be executed. उन्होंने इस चीज को अंत परंतु सकारात्मक रूप से एक सोच को नई दिशा दी और मूर्त रूप से प्रदान की। सभी स्टाफ को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग जो आज यहां मौजूद हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम और इस इवेंट की महत्वता समझी है और अपने, चाहे पढ़ाई के काम में आप लगे हैं या पास आउट करने के बाद कुछ लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल लाइफ में है, whatever they have been busy in them, they spared some time for this event to make it successful. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Since, as you all know, I have been a student from a metropolitan city. That is called, earlier नाम was कलकत्ता, अभी तो कोलकाता हो गया। चीजें जो आज मूर्त रूप से यहाँ पर साकार हुई है, इन सब चीजों से मेरा बहुत पुराना नाता रहा हुआ है। ये चीजें हम उस समय देख चुके हैं जो अब आज शायद यहाँ हो रही है, और मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझता हूं, एंड आई कैन गारंटी, सीकर के इतिहास के अंदर रीयूनियन के नाम पर अगर कोई फंक्शन है तो दिस इज द फर्स्ट इवेंट एंड द फर्स्ट फंक्शन। यस, ऑब्वियसली, और ये इसीलिए है, हमने सोच रखा है, हमारे दिमाग में है, हमारे दिमाग में था, बट couldn't help to make it do, बट लेकिन कहते हैं कि अगर आप अपनी सोच के साथ बंधे हुए हैं और सकारात्मक रूप से उस पर मंथन करते हैं, दिमाग लगाते हैं, और वो आपकी प्रायोरिटी के अंदर है, तो वो काम होता है। एंड दैट इज हैपन टू मी। आई एम हैप्पी फॉर दिस। आज का जो समा है, आज का जो माहौल है, ये
मेरे ज्यादा लंबे भाषण देने का नहीं है, क्योंकि यहां पर आज का जो मंच है इसके अंदर मैं चाहूंगा उन लोगों से, आप लोगों से मुलाकात करूं जो यहां इस स्कूल से निकल चुके हैं और जिन्होंने अपने स्कूलिंग के बाद में ये स्कूलिंग को एक फंडामेंटल बना के, उसको हथियार बना के, उसको ताकत बना के किसी मुकाम पे पहुंचे हैं, सिर्फ इसलिए भी बिकॉज आवर स्कूलिंग वॉज वेरी गुड। उन ऐसे चेहरों से, ऐसी शख्सियत से उनसे आप रूबरू करवाऊंगा जिससे आपको पता चले कि व्हाट दे आर टुडे एंड बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर टुडे। इसलिए मेरा ज्यादा कहना या बोलना आज बैठता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें शेयर करना है। अदरवाइज आज का माहौल सिर्फ आपके 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 एंजॉयमेंट का है, सिर्फ आपके एंजॉयमेंट का है। आप अपने पुराने बिछड़े हुए दोस्त, कोई सीकर है, कोई जयपुर है, कोई मुंबई है, कोई दिल्ली है, कोई नोएडा है, कोई गुड़गांव है, कहीं भी हो, आसपास दूर दूर जगह है, कहीं भी हो, उनको एक जगह मिली, व्यवस्था मिली कि हम एक साथ इकट्ठे हो सके और आपस के अंदर अपने पुराने दोस्तों के साथ जो समय हमने बिताया है उनको उन लम्हों के अंदर वापस जाएं और उसका मजा लें। तो आप लोगों को लगता है कि वापस स्कूल के स्टाफ के साथ, अपने पुराने दोस्तों के साथ आज जब बहुत दूर दूर से आप इकट्ठे हुए हैं, तो क्या आप उन लम्हों में जा रहे हैं? क्या उसको फील कीजिए, एहसास कीजिए, बदमाशियों को फील कीजिए, टीचर्स को परेशान किया उन लम्हों में जाइए, इसका आनंद लीजिए। आज कैसे किस टीचर से डांट खाई थी, किसने चाटे, कितने मारे थे, कितनी बार सर ने कॉपियां फेंकी थी और सबसे बड़ी बात है कि छोटे वाले सर ने जूते कितने बार निकाले थे। याद है क्या किसी को? कौन बोलेगा? एकदम पीछे। कितनी बार निकाले? 2 4 जूते चाहे जैसे भी हो, है छोटे लेकिन लगते बहुत है? उसी कारण यहां बैठे हैं, जूते के कारण है, वहां तक पहुंच गए। अरे बाप रे बाप। और अगर सर के पास जूते की फैक्ट्री होती तो क्या होता? सर आएंगे तो सर को बोलूंगा कि आप हमें एक जूते की फैक्ट्री निकालो। लेकिन देखो एक बात बताता हूं दिल से, जिन जिन लोगों ने जूते खाए हैं और जिन जिन लोगों ने हमारे चाटा खाया है, वो तो मान लो कूदना सीख गया, घोड़े की तरह कूदना सीख गया, भागना सीख गया। अब आजकल वाले इधर बैठे, इधर बैठे, इनका भरोसा नहीं है। तो तुम जरा बता दो इनको ये कहां तक जाएंगे। अब इनको थोड़ा ज्ञान दे दो कि भैया देखो ऊपर तक जाना हमारी तरह, तब तो जूते तैयार रखो, हैं? चलो इधर बात करते हैं, ऊपर तक जाना है क्या? जूते खाने के लिए तैयार हो गया? तो मना कर रहे हैं सब, तो सब मना कर रहे हैं। एनीवे, आपकी अच्छी यादें, आपकी नटखट यादें, आपकी प्यार भरी यादें ये जिंदा रहती है और इसमें और जब जान आ जाती है तब जब हम वापस एक जगह मिलते हैं। अब मैं अपनी थोड़ी सी बात बताऊं। मैं जहां कोलकाता में पढ़ रहा था, उस स्कूल का भी
रीयूनियन का प्रोग्राम होना है और सब जितने भी स्कूल के थे लगातार रोजाना कोई ना कोई फोन कर रहा है, तू आ रहा है क्या, तू आ रहा है क्या, तू आ रहा है क्या, तू आ रहा है क्या। अब पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जब ये बात सुनती है कान के अंदर, तू आ रहा है क्या, मैं तो आ रहा हूं, तो अलग सा कुछ पता नहीं यहां से लेके यहां तक एक सनसनाहट चालू हो जाती है कि यार वो सब जा रहे हैं, मैं कैसे मैनेज करूं, कैसे मैनेज करूं। आप लोगों के पास जब ये मैसेज गया तो सनसनाहट कुछ हुई थी क्या? होने में ये प्रोग्राम जैसा भी हो, दिखने में छोटा है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। And it is just a beginning. And we who are present, and I can guarantee you, we are the one who are going to make it large, make it large. पक्का बनाएंगे, just wait. तो आज इस मौके पर you all are welcome. Enjoy the party, enjoy the function, have the knowledge, have some words from your old friends, all your companions or your colleagues who are right now in some successful areas, whatever they have been today. They are also being present here, and somebody who is not able to reach here, we have some videos from those issues from the students. They will be sharing their own experiences and all that. अब अंत परंतु दोस्तों की जब बात चल रही है तो फिर दोस्तों की बात कर देता हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि आज डायरेक्टर का रोल कम है, आप पुराने दोस्तों का माहौल ज्यादा है, इसकी इस प्रकार की बात कर देता हूं। कहा था किसी ने मुझे और बात दिल में लग गई, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता देता हूं। नाम छोटा है मेरा, नाम छोटा सा है मेरा, दिल बहुत बड़ा रखता हूं। नाम छोटा सा है मेरा, दिल बहुत बड़ा रखता हूं। पैसों से इतना अमीर नहीं हूं, पैसों से इतना अमीर नहीं हूं, लेकिन पैसों से इतना अमीर नहीं हूं, लेकिन यार दोस्तों के गम खरीदने की हैसियत रखता हूं। नाम छोटा सा है, दिल बहुत बड़ा रखता हूं। पैसों से इतना अमीर नहीं हूं, लेकिन दोस्त और यारों के गम खरीदने की हैसियत रखता हूं। ना मुझे हुक्म का इक्का, ना मुझे हुक्म का इक्का बनने का शौक है, न रानी का बादशाह। ना मुझे हुक्म का इक्का बनने का शौक है, न रानी का बादशाह। मैं तो जोकर ही ठीक हूं, मैं तो जोकर ही ठीक हूं, जिसके नसीब में नहीं जाऊंगा बाजी पलट दूंगा। जिसके नसीब में भी जाऊंगा बाजी पलटने की हैसियत रखता हूं। ये बात मेरे को मेरे लाइफ के अंदर बहुत सार्थक लगती है। लोग राजा बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, रुतबा लेने के लिए भाग रहे हैं। मैं अपनी लाइफ को अगर पीछे जाता हूं तो मुझे लगता है कि वास्तव में जोकर ही थी। रम्मी तो आप लोग खेले होंगे, रम्मी है? जोकर की क्या इंपॉर्टेंस है तो समझ गए। व्हाट इज जोकर?
व्हाट इज जोकर? एक ऐसा शख्स जो सिर्फ लोगों की महफिल को हंसाने के लिए हल्का फुल्का बनाने का काम करता है। वो नटखट है, वो चुलबुला है, वो मायूस है, वो मासूम भी है, लेकिन इतने भाव होने के बावजूद भी वो सिर्फ लोगों के अंदर उल्लास, उत्साह, खुशी देने का काम करता है। मुझे लगता है मैंने अपने लाइफ के अंदर जब से सीकर आया हूं उसका लगभग 80% काम मैंने किया है। सो आई एम लकी, आई एम अ जोकर। अब जोकर इन द सेंस इन प्यारे बच्चों के साथ इनका साथ मिला और इनकी नसीब बदल गई। तो ये जोकर आपके लिए अच्छा है कि नहीं है? ये जोकर आपके लिए अच्छा है कि नहीं? जोर से बोलो। अब ये लोग मेरे को वो वाला जोकर समझ रहे हैं, जो पास आउट हो चुके हैं वो तो जोकर का मतलब समझ गए। ये जो करंट वाले हैं वो वास्तव में जोकर समझ रहे हैं। अब कल से पता है क्या होगा? स्कूल में बोलेंगे बड़े वाले सर तो जोकर है। एनीवे, ऐसे भी अपना टाइम स्पेंड करो, बी जॉली। किसी का नुकसान नहीं किया, ईमानदारी से काम किया। लेकिन दरअसल दिक्कत क्या है आज के जमाने के अंदर, इस जोकर की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। भागम भाग, धापा धापी, हैन टैन, इतने उलझ गए कि सब चाहते हैं कि जिंदगी हो तो बस रानी जैसी हो, राजाओं जैसी हो, और उसी के पीछे पड़े हैं। आपके पास कोई राजा है तो अच्छा महसूस करते हैं। जोकर की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई, तो मैं चाहूंगा वापस आपको याद दिलाने कि जोकर को हमेशा साथ रखिए, वो आपको धोखा नहीं देगा कभी। मेरी फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मैं खुशकिस्मत हूं कि मैंने हमेशा जोकर का काम किया। ऑलवेज रेडी फॉर देम। मेरे स्टाफ के अंदर कोई काम है, आई हैव बीन अ जोकर। मेरी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कोई काम है, इवन दो आई हैव सो मेनी सोरोज in my life, but that is inside my body. I'm not going to show to the others. लोग कैसे खुश हो, that is important for me. बच्चे शैतानी करते हैं, बदमाशियां करते हैं, दुख होती है, तकलीफ होती है, वो तकलीफ अंदर है, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूं। वो खुश रहे, अपने काम में लगे रहे, आगे बढ़े। अंत परंतु ये कहना चाहता हूं कि 98 में जब मेरी कॉलेज खत्म हो चुकी थी, तो सीकर आने का मकसद, destiny is not defined. You have to regularly go to work on it. I've been here in Kolkata, from Kolkata to Sikar. कि कंपटीशन की क्यों तैयारी करेंगे, अपने जानकार वाले हैं, ये व्यवस्था बन जाएगी, पढ़ने में अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, अच्छा काम हो जाएगा। बट पता नहीं ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर। मैं अपने स्टाफ के अंदर कई बार कहता हूं, आई एम एन एक्सीडेंटल टीचर। टीचर बन गए लेकिन एक्सीडेंट से बन गए।
आप लोगों को कोई ऐसा कोई है क्या प्रोफेशनल मैन जो है, जो एक्सीडेंटल कुछ हासिल किया हो? एनीबडी फ्रॉम हियर? या जो सोचा उसी में लग रहा है, उसी को पाया है, ऐसा? एनीबडी फ्रॉम यू कि सोचा नहीं था लेकिन हो गए? अरे मैडम, आप तो मेरी कैटेगरी के बच्चों से पूछ रहा हूं। मेरी साथी एक तो मिल गई, सुमन मैडम मेरी साथी है। जैसे मैंने सोचा नहीं था वैसे इन्होंने सोचा नहीं, लेकिन भगवान को मंजूर था कि आप टीचर बनी। तो जस्ट लाइक मी, मेरी भी ये सोच थी कि कुछ अलग होना, बट अंटिल एट द लास्ट टीचर बन गए। बट some important message to you from this stage. Wherever you are, whatever you are, doesn't matter. The important is how do you deal that situation, how do you deal that profession, how do you deal that business. That is important. There are some instances may occur, have occurred and will occur in your future also. हो सकता है कई बार ऐसी चीज होती है जो आपने सोचा नहीं हो जाती है, लेकिन जब आ गई है सामने तब उसको किस प्रकार से बेहतर तरीके से करना है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड आई थैंक्स टू माई ओल्ड टीचर्स। जैसे आप लोगों के सामने, आप लोगों ने बहुत सारे टीचर्स के साथ आमना सामना किया होगा, बहुत सारे टीचर्स ने आपको मोटिवेट किया होगा, या बहुत मिले होंगे, लेकिन उसमें से कुछ एक ही होंगे आपके टीचर्स जो हमेशा आपको इंस्पायर करते हैं। नर्सरी से लेके क्लास 12 तक यू हैव बीन फ्रॉम सो मेनी टीचर्स इन योर लाइफ, बट देयर इज ओनली वन और मे बी वन और टू टीचर्स हु जस्ट चेंज योर लाइफ, चेंज योर थॉट्स, you change your thought process also, and hence you change your life. सब नहीं होते हैं, लेकिन हर बच्चे के अंदर एक ऐसा टीचर अंदर जहन में होना जरूरी है। हर स्टूडेंट के जहन में यहां से एक टीचर जहन में होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट सिंगल टीचर will denote to the whole fraternity of the teachers. अगर आप उस एक टीचर की सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, उसकी कही बात को मानकर अपना मार्गदर्शन, अपना पथ, अपना रास्ता बना रहे हैं, इसका मतलब आप उन सभी टीचर फैमिली को, टीचर के नाम के संज्ञा को आप डिफाइन कर रहे हैं। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब टीचर जरूरी नहीं है कि हमेशा हम कहते हैं कि जो टीचर हमने पढ़ाया, ही इज ओनली और शी इज ओनली टू बी कॉल्ड अ टीचर। डजंट मैटर हु इज शी और हु इज ही, बट somebody who has changed you internally, and you are always eager to be with him or in front of him, डिमांडिंग कि मुझे और दीजिए, मुझे आपसे और कुछ सीखना है, और उस टीचर के सामने आप हमेशा ऐसे रहते हैं, प्लीज मुझे और दे दीजिए, मैं आपका फैन हूं, मैं फलाना हूं, जितना आपसे लूं मेरे लिए उतना कम है। ये आप सब आपके सभी बच्चों के एक टीचर आपका होना चाहिए, कोई भी हो, आपकी माँ हो, आपका बाप हो, भाभी हो, चाची हो, आपका स्कूल का टीचर हो, कॉलेज का टीचर हो, whoever it is. सिंस रियूनियन के अंदर हम बच्चे के साथ टीचर्स भी सब कनेक्ट कर रहे हैं, तो अब थोड़ी सी बात और कह देता हूं। मेरी स्कूल which was owned by Birla ji were been divided into two sections. First was the pre-primary school that was called Mahadevi Birla School. That was up to only 5th. Then after the senior section which was called Hindi High School, recently it has been named Birla High School has been today's its name is. When I was there in pre-primary section, मुझे आज भी एक घटना याद है। When I was in class prep, two of my favorite teachers were there.
Lata Sharma madam, Sita Sharma madam, and principal madam was also very good. But I was very much connected and touched to my teacher, whose name is Lata Sharma. अब क्यों? अब देखिए, अब इस पे भी एक अलग कहानी है. वो मुझे क्यों पसंद है? पसंद इसलिए है क्योंकि उन्होंने, बहन जो मैं क्लास प्रेप में था, तो उन्होंने मेरी ऐसी खिंचाई करी थी कि पूछो मत. अब मुझे तो आपको सबको सामने बोलने में शर्म आ रही है. बोल दूं क्या? बोल दूं? बोलना उचित नहीं होगा. चलो ठीक है, थोड़ा सा बोल देता हूं. किसी कारणवश कोई काम नहीं हुआ और एग्जाम के अंदर, टेस्ट के अंदर मेरे नंबर कम आ गए थे. एंड आई वॉज ऑलवेज अ ब्राइट स्टूडेंट. नंबर कम कैसे आए, ये काम कैसे पूरा नहीं हुआ, आज घर नहीं जाने दूंगी. आज घर नहीं जाने दूंगी. आई वॉज वीपिंग, आस्किंग कि आज छोड़ दीजिए. नो, आई विल नॉट लीव यू, आई विल नॉट लीव यू. तुमने किया कैसे ये? मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी. हाउ डेयर यू. बहुत रो रहा था, लेकिन उसने तो एकदम, मैडम ने तो मना कर दिया, तुमको तो छोड़ूंगा नहीं आज. और फिर उसने मेरा शर्ट निकालना शुरू कर दिया. आज सब कपड़े निकालूंगा. फिर पिताजी को फोन किया, बुलाए, और पिताजी एकदम लाल बबूले, एकदम कान लाल, बार सब गाल एकदम लाल. सब आदमी काम धंधे कर में बैठा है, 3 बजे 2 बजे आपको फोन करता है कि आपके बच्चे को आप ले जाइए, ऐसे फलाना है. पिताजी आए और पिताजी के सामने मुझे इतना डांटा मैडम ने. उस समय तो बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे कि छोटी सी गलती के लिए मैडम ने इतना डांटा, इतना परेशान किया, जबकि हमेशा मैं तो सब कुछ अच्छा ही करता हूं. बट उस समय कुछ दिन तक मैडम के प्रति मेरी नेगेटिविटी थोड़ी रही दिमाग के अंदर. गुस्सा भी आ रहा था मैडम के प्रति, आंख भी नहीं मिला रहे थे. ये उस समय की बात कर रहा हूं मैं, जब मैं क्लास प्रेप की बात है. बट पता नहीं, धीरे धीरे अंदर से एक फीलिंग आनी चालू हुई. अब वो किसी वजह से भी हो, डर से हो या किसी वजह से हो, कि मैडम की वजह से तो डर लगने लग गया, आपको भी काम सब व्यवस्थित करनी पड़ेगी. उस दिन का दिन, उसके बाद में मैंने सिर्फ उन्हीं टीचर की नहीं, किसी भी टीचर से शिकायत आए ऐसी नौबत मैंने कभी नहीं. मेरी तरफ से शिकायत हो किसी टीचर से, ऐसा मैंने कभी नहीं किया. तो वो जो फंडामेंटल दिमाग था में बात, वो आज तक मेरे दिमाग में है. और इतने सालों बाद, 4 साल बाद, या सॉरी 4 साल या 5 साल पहले, अचानक जैसे आप लोगों का अपना ग्रुप है, तो जैसे व्हाट्सएप चालू हुआ, तो उसके बाद मेरे महादेवी बिरला स्कूल के बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप बनाया, मेरे नंबर खोजे, उसने ऐड किया, और वहां उसने लता शर्मा मैडम को कनेक्ट किया. और वो नाम देखते ही मुझे इतना अच्छा लगा, अरे लता मैडम है, मुझे बात करनी है. एंड इंस्टेंटली आई कॉल्ड हर. और उनका सबसे पहला वाक्य क्या था, बेटा कैसा है तुम, पता चला कि तुम बहुत तकलीफ में हो, शरीर ठीक नहीं है. तो ये शब्द सुनते ही न रोया जा रहा था, न हंसा जा रहा था. अजीब सी फीलिंग आ रही थी. तो मैं ये मैसेज इसलिए दे रहा हूं कि ये कनेक्टिविटी है एक टीचर और स्टूडेंट की, और ये होनी बहुत जरूरी है. और अगर वो है, तो वो जो टीचर जो डिमांड करता है, आप उसको पूरा करने की पूरी जिद करते हो. इसलिए मेरा इस मंच से आप लोगों का कहना है, इस अवसर पर अपनी लाइफ के अंदर कम से कम एक टीचर अपने पास ऐसा रखो जिसका आप पूरे दिल से सम्मान करते हो. ही और शी will change your life, I can guarantee. On the whole, lastly,
तो मैं कह रहा था कि यहाँ आए थे कुछ बनने के लिए, परंतु जोकर बन गए। आए थे कोई IAS अफसर बनेंगे, कोई कंपटीशन फाइट करें, लेकिन जोकर बन गए। इधर उधर गए, अंत परंतु चला के भैया कुछ नहीं, पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाना है तो एक ही मकसद से कि मेरे अंतर्गत जो बच्चे पढ़े उनके साथ मैं हमेशा न्याय करूंगा, उनको वो चीज सिखाऊं जो उनकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू गॉड कि मुझे मेरी जैसी सोच जैसा ही मेरा दोस्त मिला, आपके छोटे वाले सर। एंड इट इज ए टोटल कोइंसिडेंस एंड दैट इज व्हाई इट इज ए टोटल, जैसे आप लोगों ने कहा है, देखा है ना कि आपके कितने वंडर्स है साल, 7 वंडर्स है ना। सीकर के लिए 8वां वंडर है, लोग बात करते हैं सीकर के अंदर। आज सीकर में बात करते हैं कि इन दोनों की दोस्ती 20 साल से चल रही है, सुई की आवाज भी नहीं आई। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल। ये 8वां आश्चर्य सीकर के लिए। कई बार तो हमने ये भी सुना है कि समटाइम सम पीपल आर डूइंग समथिंग, ये अलग कैसे हो, अलग कैसे हो, ये भी बात आई है सामने। बट अगर आपने अच्छा किया है, आपकी सोच अच्छी है, आप दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से एडजस्ट करना है, तो इट विल बी गोइंग ऑन। आप भी अपने दोस्त हैं, किसी के साथ बैठे हैं, तो दोस्ती ऐसी करो जैसे हम हमारी है, क्योंकि दोस्त का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। और इसीलिए हमेशा कहते हैं दोस्त भी ऐसे चुनो जो आपकी प्रभावित करता हो, और अच्छे दोस्त चुनोगे तो आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है। आई कैन गारंटी, आपने अगर अच्छे दोस्त चुने तो आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू स्पॉइल योरसेल्फ आल्सो। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड आल्सो, दोस्त अच्छा मिला। और जिस प्रोफेशन में आए, जैसा हमारे टीचर ने सिखाया कि अगर आप ये हैं, इसका मतलब व्हाट आर द एथिक्स, व्हाट आर द morality and what is your duty as a teacher, what should you do for this, वो आपको क्या करना है, ये समझ में बहुत जल्दी आ गया। और इसमें बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं है, क्योंकि एक सांसारिक परिवार से, संस्कृति परिवार से बिलोंग करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, इसलिए इतना होश आ गया कि आप जो कुछ भी करो, किसी को नुकसान देके अपना फायदा मत करो, किसी को नुकसान देके अपना फायदा मत करो। और कम से कम जिन बच्चों पर मैं दाव लगा रहा हूं, उनका भविष्य बना रहा हूं, कम से कम उनके साथ तो मैं कभी अन्याय कर ही नहीं सकता, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ मी, नॉट मी ओनली, फ्यूचर ऑफ द स्कूल, फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी, फ्यूचर ऑफ द नेशन। वो गलत कर ही नहीं सकता, ये बहुत जल्दी समझ में आ गया। हाँ, हो सकता है काम करते समय कुछ कम गलतियां हो सकती है, मिस्टेक्स हो सकती है, समथिंग could have not been happened in the perfect way what has been demanded by the other people, but सोच कभी भी गलत नहीं। अब थोड़ी सी दिक्कत होती है, हम the last 2-3 years हमें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। आप लोगों के समय इतने चैलेंजेस नहीं, इनके साथ हमको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि इनके साथ आज का जो समय पूरी तरह से बदल गया। ऑल द डिजिटलाइजेशन, सुनना और सब्र करना और आज्ञा पालन करके उसको मानना, ये चीजें धीरे धीरे कम हो रही है बच्चों में। पेशेंस नील, they are not even trying, they are not even ready to listen to their father and mothers। तो टीचर को तो कुछ समझते ही नहीं है। बट
आई एम हैप्पी, इस बात की खुशी भी है कि कहीं ना कहीं हमने अपनी सोच से इस व्यवस्था को आज भी जिंदा रखा है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो बच्चे सोफिया स्कूल से निकले हैं उनमें से 60% से 70% के बच्चे आज भी, पुराने, आज की बात नहीं कर रहा हूं, पुराने 3-4 साल की को छोड़ो, उसके पहले के जो बच्चे हैं आज भी वो उसी ढर्रे में है, उसी संस्कृति में है जैसा हम चाहते थे। एंड दे आर प्रेजेंटिंग देमसेल्फ इन दैट सेम मैनर व्हाट वी डिजायर्ड फ्रॉम देम एंड हैप्पी फॉर देम। सो एट लास्ट आई वेलकम यू ऑल हियर टू एंजॉय दिस फंक्शन। इट इज अ लॉन्ग, आदत थोड़ी सी हो गई बोलने की, क्या करूं, बोलते बोलते फिर पता नहीं क्या हो। नितिन जी, आपने भी टोका नहीं मुझे। नो, इट इज नॉट माई डे, इट इज आज तो डे उनका है। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना, मैं सौदा, मैं सौदा। अब देखो भाई, ये गाना जो बजता है तो आप लोगों को पता, अपने तो होता नहीं है, सबर नहीं होता, सबर होता नहीं है। तो वो ज्ञान सब कुछ हो गया। आशा करता हूं आने वाले भविष्य के अंदर ये प्रोग्राम एक मिसाल बने सीकर के अंदर, और आज जो संख्या आया है, आज जो संख्या यहाँ मौजूद है, उससे बहुत ज्यादा संख्या मौजूद होगी। लेकिन ये मैं वादा कर सकता हूं, ये जो प्रोग्राम है ये हमेशा चलता रहेगा, ये अब हर साल होना है। कोई आज है तो कल कोई दूसरा होना है, लेकिन ये चलेगा। इसलिए गम वाली कोई बात नहीं है। जो आज प्रेजेंट नहीं हो सके उनको भी कोई गम नहीं है। इट इज गोइंग, अब ये गाड़ी चल चुकी है, ये रुकेगी नहीं, ये रुकेगी नहीं। अब लास्ट के अंदर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर देते हैं, चलाइए जी। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना, मैं सौदा, मैं सौदा, मैं सौदा, मैं सौदा, मैं सौदा, मैं सौदा। तुझे लगता खराब, मुझे लगता बुरा, सौदा इश्क गजो है तेरा। ऐसे कि तू ना हो परे हाथ में गो, स्पॉइल करना तू मूड मेरा। ओ दिल को तूने छुआ, ओ जाने संती हुआ, ओ दिल को तूने छुआ, मैं संती हुआ, मेरे नाम तन्ना जला। Alumni can join, sir, on the stage. दिल देना दिल लेना,
programs for you. So we will dance. And created the new memories of your this year. After 2 days, 2 or 3 days, New Year is coming. और इस पुराने साल के साथ में आप बहुत अच्छी यादें लेकर जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सर के मोटिवेशनल स्पीच के लिए मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उनकी बातों से अटेंडेंस का तो पता नहीं, लेकिन मुझे जरूर मेरे स्कूल के दिन याद आते। गेट के अंदर घुसने से पहले फ्रेंड्स को एक दूसरे से पूछना, आज लंच में क्या लेके आया है या लेके आई है। और कोई अगर किसी दिन कुछ स्पेशल लेके आए तो लंच से पहले उसका लंच बॉक्स गायब, लंच टाइम से पहले। ये सारी चीजें, टीचर्स की मिमिक्री, फ्रेंड्स का आपस में अंदर रूट ना मनाना, ये सारी चीजें घर से याद आ गई। अब प्रोग्राम को ज्यादा लंबा ना करते हुए या मेरी बोरिंग बातों से आपको ज्यादा बोर ना करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। Thank you very much, sir, for your motivational words. Definitely, we are motivated. और इसी motivation की कड़ी में, I would like to call the students of 9th class for a patriotic performance to fill up with you with the enthusiasm. Please welcome 9th class girls.